Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Shirin Mazari, Minister of Human Rights, Dr. Fahmida Mirza, Dr. Zubaida Jalal, Ali Muhammad Khan Saab, Federal Ministers, Parliamentarians, Ambassadors, and the excellent bunch of speakers who came here, Iram Baloch, Reem, Zara Naeem, the representatives of UN agencies, Ms. Sharmila Rasool, Ambassador of EU, Khawateen wa Hazrat, Assalamu alaikum. It is a pleasure to be here. You must be tired, but this is such an important occasion, I do not promise to restrict my speech. I have always wondered why my wife has pushed so many women issues. Always, when there was breast cancer, it was done on a singular day in October, a commemoration to make people aware, and she said, no, it should not be a day, it should be a month. Sitting here right next to her, today I realized what is happening. So I looked at astrology, and I knew that today is her birthday. So if she's born on a woman's rights day, she pushes those rights on every occasion I can imagine. So ladies and gentlemen, talking about women and particularly with reference to COVID, I must congratulate the woman who probably shared the bigger burden: harassment at home, violence at home, outside during nursing, etc. And the history of nursing, the women throughout the world have led nursing. Even at the time of the Prophet ﷺ, there was a Sahaba who was involved in nursing of injured people during the wars, etc. And there was an institution established during his lifetime. And after that, the church has done wonders. In fact, people will remember Ruth Fao. In the tradition of Jesus, the church has done a lot of contribution of taking care of lepers, of taking care of the sick. So the religious tradition as far as nursing and COVID is concerned has been born by the woman throughout history, and again it was repeated during the COVID. So I must take my hats off to the woman particularly, of course to the men also, but to the woman particularly. Now, having touched what has been expressed and the laws in Pakistan, etc., let me pick up one by one issues what we need to do. एक तो होता है discussion कि क्या करना है, क्या हालात हैं, क्या ऐसा है और कैसा है, और एक है कि हम कर क्या सकते हैं. जो कवानीन पाकिस्तान के अंदर अब पास हुए हैं, वो कवानीन सिर्फ रीटरेट करते हैं जो कवानीन हमने इनहेरिट किए, और हमारी हिस्ट्री इस माना करके है बहुत पुरानी, मगर उस पर मैं बाद में आऊँगा. मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, विद अपॉलजीज टू माई फ्रेंड्स हु ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज I am also speaking at this time to the women of Pakistan. तो वो अंग्रेज़ी ज़बान शायद इतना ना समझ सकें. मैं इस चीज़ को इतनी अहमियत देता हूँ कि ये सब तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि वुमेन राइट्स के एतबार से हम क्या बात कर रहे हैं. एक मिसअंडरस्टैंडिंग माशरे में चलती है कि जब औरत पाकिस्तान के अंदर कोई बात हुकूक की करती है तो कभी कभी उस पर ये लेबल लगाया जाता है कि ये वेस्टर्न औरत की तरह एक मुकम्मल आज़ादी की बात करती है. हम तो समझते हैं कि मुकम्मल आज़ादी है, मगर माशरे के साथ चलते हुए और माशरे ने भी बेइंतहा हुकूक दिए हैं उसको भूले बग़ैर ये सारे काम होते हैं. तो कोई कन्फ्रंटेशन है नहीं, मगर कभी कभी जो पाकिस्तान में हमने सड़कों पर देखा तो एक तरफ लेफ़्ट की ख़वातीन थी, एक तरफ राइट की ख़वातीन थी, और जब उनके इश्यूज़ को मैंने देखा और फिर मैंने यहाँ पर ख़वातीन के सारे सेगमेंट्स को बुलाया, डॉक्टर मज़ारी भी उसमें मौजूद थी. उसके अंदर जो 99% इश्यूज़ थे जिनकी ज़रूरत है उसका किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था, न मग़रिब से न मशरिक़ से, औरत के साथ था और हमारे मुसलमानों के ट्रेडिशंस के साथ उसका ताल्लुक़ था. तो जब ये बात करूं तो मुझे ये भी देखना पड़ता है, और मैं आपसे कहूं कि हर पहिए को हमें चलाना पड़ेगा. ये जिन पहियों का यहाँ जिक्र हुआ उसके अंदर मैं एक और पहिया आपके नज़र में डालता हूँ कि औरत के साथ फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, जो मेल न्यूट्रिशन का असर होता है, जिसके अंदर
ब्रेस्ट फीडिंग की कमी की वजह से औरत भी जो 6 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग है, कुरान कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग औरत को 2 साल तक करनी है। अब तो सेहत वाले हजरात जो रिकमेंडेशन करते हैं वो कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, पानी और कोई ग़िज़ा दी ना जाए। तो वहाँ से औरत की सेहत, उसकी अपनी मेल न्यूट्रिशन और बच्चे की मेल न्यूट्रिशन का सद्देबाब शुरू होता है। अब जब मेल न्यूट्रिशन है, औरत की फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं, वहाँ से उसकी कमज़ोरियाँ भी शुरू होती हैं। तो लिहाजा ये 6 महीने का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बाय इटसेल्फ औरत ओवुलेट नहीं करती और प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो लिहाजा वहाँ से हम बात करना शुरू करें। फिर बच्चों की स्टंटिंग के एतबार से प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही ओकेजन पर यह बात की। ये चीज़ें, इन सब का नियोनेटल मॉर्टेलिटी और औरत की मेल न्यूट्रिशन का बड़ा करीबी लिंक है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ यकीनन औरत इसको हैंडल करेगी। फिर मैं आपके सामने एक और बात कहता हूँ, जब औरत को स्ट्रेंथन करना है तो उसकी सेहत, जिस्मानी हालत को स्ट्रेंथन करना है, उसके कवानीन को, माशरे में उसके मुकाम को, कानून के एतबार से उसकी विरासत को, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम भूले नहीं। तो लिहाजा पहले जब से मैंने मेल न्यूट्रिशन की बात की तो सेहत की बात आपसे कर लूँ। आप तसव्वुर कीजिए, पिछले दिनों मुझे किसी वजह से मुझे खांसी वासी हुई, मैं परेशान हुआ कि कोविड तो नहीं है। तो क्या किया मैंने किसी डॉक्टर से बात की, कोई मशवरा किया। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, उसके बावजूद मुझे बात करने की ज़रूरत थी। अब आप तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर वो औरत जिसका जिसका मर्द बाहर काम करने जाता है और दिन में 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी लगाकर आएगा घर पर, और औरत के पास क्या रास्ता है कि वो कोई मशवरा ले ले सेहत के बारे में। मुझ जैसा आदमी जिसको मशवरे की ज़रूरत है, तो उस औरत बेचारी को जो अपने एतबार से घर का काम कर रही है, प्रोडक्टिव है सोसाइटी के अंदर, उसको मशवरा कहाँ से मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बेइंतहा ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब औरत की सेहत का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो माशरे की में एक तरफ होती चली जाएगी, बच्चों की वजह से होती चली जाएगी। यकीनन उसका राइट है, हमारे माशरे की खुशी है कि वो बच्चे पैदा करती है, मगर ऐसा ना हो कि सारी सीक्वेंस के अंदर उसकी सेहत इतनी ख़राब हो जाए कि वो माशरे के अंदर प्रोडक्टिव नहीं रहे। तो मैं आपके सामने ये कहता हूँ कि मैं पुश कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि टेली हेल्थ को आम किया जाए। टेली हेल्थ का मतलब ये है कि कोई औरत जो निकल ना सकती हो, देखो तसव्वुर इसका औरत के ज़रिए करें, गुरबा के ज़रिए ज़रूर करें, मुफलिसों के ज़रिए ज़रूर करें, मगर औरत के ज़रिए ज़्यादा करें, क्योंकि माशरे के अंदर वो एक पिसे हुए तबके के एतबार से आती है। तो कम से कम जैसे 1099 का मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक इशू वायलेंस के एतबार से शुरू किया। मैं इसको समझता हूँ इतना ही आसान। आप खुदकुशियों देखते हैं, रोज़ाना की खबर होती है कि एक औरत ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। ये स्ट्रेस का एलिमेंट है, तो क्यों ना उसको ये सहूलत फराहम की जाए कि वो टेलीफोन उठाकर मुफ्त कॉल करके किसी से मशवरा ले ले। बड़ी अहम बात आपके सामने कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस बात का इम्कान नहीं होगा अगले 5-6 साल के अंदर कि हर मर्द और जन जो है वो डॉक्टर के पास फौरन पहुँच जाए और उसका इलाज हो। तो लिहाजा हम पाकिस्तान के एतबार से अपने दिमागों को हम तेज़ करें कि क्या चीज़ें हम बड़े सस्ते अंदाज से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्ट्रेस का भी जिक्र किया कि जनरल फिगर्स ये हैं कि 40% स्ट्रेस माशरे में है, पाकिस्तान में भी वो फिगर्स सही है। कहीं मशवरा तो कर ले। ये टाबू का जिक्र किया किसी ने, आपको वाकिफ़ होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि टापू के नाम से हवाईयन लफ्ज़ था जिसके अंदर किसी चीज़ की बात नहीं की जा सकती थी, तो वो हवाई से टापू आया और टाबू बन गया। तो हमारे यहाँ भी बहुत चीज़ों की बात नहीं होती, और इसी वजह से नहीं होती कि कम से कम माशरा और कल्चर चीज़ों को रोकता है। अच्छा, अब आप जहन में सोचिए कि एक तो मेरा मज़हब की हिदायत है और एक मेरा कल्चर है। अच्छा, और कल्चर ने मज़हब की हिदायत की भी नफ़ी कर दी। अगर आप विरासत के कानून को देखें तो पाकिस्तान के मुसलमानों के यहाँ कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर विरासत डिस्क्राइब हुई। अच्छा, अगर कुरान के अंदर अगर कोई कानून अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी और बड़ी गहरे अंदाज से जिसका जिक्र किया है, फ्रैक्शंस का जिक्र करके औरत की विरासत का जिक्र किया, फ्रैक्शंस में।
और आज मैं आपको बताऊं ना, ये पुराना ये कानून जब से है और पाकिस्तान के अंदर जब इस बात का जिक्र हो कि औरत को विरासत नहीं मिलती तो कितने अफसोस की बात है। तो लिहाजा मैं इसी वजह से माजी के साथ उस सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं। और उसके मुकाबले में मैं आपको बताऊं, आज सुबह मैं एक किताब पढ़ रहा था यहां आने से पहले, और उस किताब के अंदर उस किताब का रेफरेंस आपको देना चाहता हूं। एक औरत थी, यानी मैं 1400-1500 साल पुरानी बात कर रहा हूं, कि जहां कुरान ने वजाहत कर दी कि औरत के हुकूक दुनिया में सदियों तक ये नहीं आए, है ना। तो लिहाजा अपनी विरासत, अपनी इंटेलेक्चुअल विरासत की तरफ भी नज़र डालो। तो एक औरत थी जिसका नाम था कैरोलाइन शेरिडन, इंग्लैंड में। उसने एक मर्द से शादी की जिसका नाम था जॉर्ज नॉर्टन। 1827 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ जिन चीज़ों का जिक्र हुआ वही कहानी, और इसी वजह से मैंने फोटो कॉपी करा ली। आज सुबह ही पढ़ा था। द बुक का टाइटल है द नैरो कॉरिडोर बाय एसिमोग्लू एंड रॉबिन्सन, और वो बात करता है कि रियासत को किस तरह से मैनेज सोसाइटी के प्रेशर के साथ किया जाता है। तो खैर मौजू उसका कुछ अलग है। तो कैरोलाइन शेरिडन ने जिस मर्द से शादी की, तो 1836 में उसने सोचा कि मैं इससे अलहदा हो जाऊं। क्यों अलहदा हो जाऊं? बिकॉज ऑफ वायलेंस। बहुत उसको मारता था, वो अलहदा हो गई। अलहदा होने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि कानून के मुताबिक उसके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। इंग्लैंड का कानून ये कहता था कि दैट विच द हस्बैंड हैज इज हिज ओन। जो मर्द का है वो उसका है, और जो औरत का है वो भी मर्द का है। ये 1827 की बात कर रहा हूं, 1836 की। अच्छा, और बाय मैरिज कानून उस जमाने का ये कहता है, 1765 का, कि बाय मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ आर वन पर्सन इन लॉ। That is, the very being or the legal existence of the woman is suspending during marriage. उसकी लीगल एग्जिस्टेंस सस्पेंड हो जाती थी मैरिज में। अच्छा, तो ये बड़ी लंबी जद्दोजहद है जो यूरोप ने भी की है और हम आज कर रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए, हम आज कर रहे हैं, जबकि हमें मिला ये सहीफा हमें मिला 1400 साल पहले। फिर उसको फिर ये भी एहसास हुआ उस औरत को कि बच्चे भी उसके किसी और को दे दिए जाएं, उसका कानून के अंदर कोई गुंजाइश है ही नहीं। उसने उसके खिलाफ भी जंग की। फिर उसने क्वीन को खत लिखा और उस खत के अंदर लिखा कि अ मैरिड वुमन हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग इज एब्सॉर्ब्ड बाय हिज हस्बैंड, शी हैज नो पोजेशंस, शी हैज नो राइट टू हर प्रॉपर्टी, has no legal right even to her clothes or ornaments. Her husband may take them and sell them in the market, even though they may be gifts she has bought themselves or be given to her. She cannot legally claim her own earnings. चाहे वो पढ़ाती हो, आगे वो लिखती है बड़ी तफसील से, चाहे वो पढ़ाती हो, चाहे वो सिलाई करती हो, चाहे वो लिखती हो, उसकी सारी अर्निंग्स उसके शौहर की हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ ख्वातीन व हज़रात कि पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए तो बेइंतहा और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तारीख़ में आपके पास ये सब कुछ मौजूद था। इब्न खल्दून ने अपनी किताब के अंदर मुक़दमे के अंदर लिखा है कि जो मुसलमानों का बदनुओं से शुरू कल्चर भी हुआ था और जिसको इस्लाम ने उसको टेलर किया मज़ीद, उसका इनहेरिटेंट क्वालिटी असाबिया। असाबिया का मतलब ये था कि एक दूसरे की फ़िक्र करना, जिसके अंदर औरत मर्द सब बराबर थे। तो इतने गोल्डन कल्चर से आते हुए मेरे लिए और आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस बात पे ज़्यादा मुस्तहकम होना चाहिए। मगर कल्चर ने कुछ चीज़ों को ख़राब किया। विरासत, मेरे ख़्याल से इस रीजनल कल्चर ने विरासत को ख़राब किया और पाकिस्तान के अंदर वाकई औरतों को विरासत नहीं मिलती। लिहाजा जो कवानीन पाकिस्तान के अंदर पास हुए, मैं डॉक्टर मज़ारी से वहाँ बैठा हुआ ये कह रहा था कि शायद ये गलत फहमी दुनिया में जा रही है कि पाकिस्तान में कवानीन नहीं थे, अब शुरू हैं। पाकिस्तान में कवानीन हमेशा थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर विरासत का कानून हमेशा, जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से औरत की विरासत का कानून था, मगर अब उसके ऊपर तफसील के साथ इम्प्लीमेंटेशन को देखा जा रहा है कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सजाएं दी जा रही हैं कि क्यों जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी। फिर आपके पास
अब ये हुई तो बात विरासत की, क्योंकि अगर इनहेरिट करेगी वो प्रॉपर्टी तो ही वो ताकतवर बनेगी। विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देयर इज हार्डली एनी इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसकी होनी चाहिए, जिसकी इस्लाम ने रास्ता दिखाया, कोई ये मगरब का कानून नहीं है। तो एहसास प्रोग्राम के अंदर भी ये किया कि औरत को सुतून माशरे का समझ करके ज़्यादा डिसबर्समेंट्स औरत को डायरेक्टली दिए गए। अच्छा, और औरत क्यों दुनिया के अंदर ये महसूस हुआ, कम से कम ईस्टर्न कल्चर्स के अंदर ये महसूस हुआ कि औरतें मर्दों के मुकाबले पे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, विच इज़ यूनिक टू यू। तालियां बजाइए अपने लिए, कम से कम रिकग्नाइज तो करें इस बात को, है ना। अच्छा, और वापसी, लोन्स वापसी के अंदर भी औरत जिम्मेदार है। मैं कल एक जगह तकरीर कर रहा था अखुवत फाउंडेशन में, वहाँ 100% रिटर्न है और औरतों को जितने लोन्स दिए जाते हैं वो सब वापस करते हैं। तो लिहाजा एक चीज़ आपको बताता चलूँ इसी के अंदर, ताकि जो लोग यहाँ ओपिनियन मेकर्स हैं वो वापस जाकर कहें। मैंने बैंक से पूछा, मिसेस अलवी ने और मैंने बैंक से पूछा, चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुलाया कि औरतों की एम्पावरमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी रियासत ने, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस बात का एहतमाम किया है कि 50 लाख का लोन औरत एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है, वो अप्लाई करे। और उन्होंने ये कहा कि इसकी यूटिलाइजेशन सिंगल डिजिट्स में है। क्यों है? हमें बात पहुंचा नहीं पा रहे औरतों तक कि तुम्हें लोन मिलेगा, तुम्हें रियासत मजबूत करना चाहती है, मगर औरतों को अंदाजा नहीं है। औरतों तक उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप प्रचार कीजिए, एंड टुडे व्हेन आई मेंशन दैट इट इज इन द सेम इंटरेस्ट कि दोज लोन्स आर अवेलेबल फॉर वुमेन, बट वेरी फ्यू वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड। सो देयरफॉर ऑल दोज एनजीओज व्हिच आर वर्किंग फॉर वुमेन, टेक दिस एज अ बर्डन अपॉन योरसेल्फ कि यू हैव टू गो आउट। औरतों को आपने एजुकेट करना है, लोन लेने के, मुमकिन है वो घबराती हो कि क्या फॉर्म्स मुझे भरने पड़ेंगे लोन लेने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के, तो वो भी अवेलेबल है। फिर आ जाइए तालीम के ऊपर। मैं एक एक चीज़ को करना चाहता हूं कि औरत मजबूत कैसे होगी। तालीम का यहाँ पे जिक्र हुआ, वहीं उन्हीं चीज़ों के साथ मजबूत होगी। और आपको ताज्जुब, आपको एक बात बताऊं कि कोई 20-25-30 साल पहले मैं भूरबन में था, तो मैं वॉक कर रहा था भूरबन से मरी, तो एक जगह हम पहुँचे जहाँ बच्चे स्कूल से आ रहे थे, 4 लड़के थे, छोटे छोटे लड़के होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ पढ़ते हो, ये सब पूछने के बाद पूछा, मैंने कहा तुम्हारी बहनें क्या कहाँ जाती हैं स्कूल में? उसने कहा उनके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, दिस इज़ द कल्चरल कॉन्सेप्ट कि औरत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो अब बदलता जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट्स को हमें मैनेज करना पड़ेगा। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे मैनेज किया, हिजरत कॉलोनी में एक स्कूल था, तो लोगों ने ये कहा, और वहाँ पश्तून बस्ती थी, लोगों ने ये कहा ये स्कूल मिडिल तक है और मिडिल के बाद जो है वो बस्ती के बाहर स्कूल है, सड़क के उस पार। तो लोग अपनी बच्चियों को मिडिल के बाद तालीम नहीं देते हैं। तो मैंने और समीना अलवी ने कोशिश कर फंड रेजिंग कर उस स्कूल को मैट्रिक तक ले गए, तो लड़कियां मैट्रिक तक पढ़ने लगी, और अल्लाह का फजल है अब वो स्कूल इंटरमीडिएट तक चला गया। तो लिहाजा वो माहौल हमें अपने माशरे के एतबार से भी हैंडल करना पड़ेगा कि औरत का जो, लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कैसे कम करें। अगर हमारा माशरा चाहता है कि जेंडर बेस्ड स्कूल खुलें, लड़कियों के अलग, और हैं सारे पाकिस्तान के अंदर वही हैं, लड़कियों के अलग और लड़कों के अलग, तो हमें उसको केटर करना पड़ेगा, मगर औरत को तालीम के मेयार के अंदर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। और मुझे याद है जहां आप आज के कंट्रीब्यूशंस की बात कर रही हैं, माशाअल्लाह डॉक्टर जुबैदा जलाल और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि क्या किया, ये आप उन ईंटों के ऊपर मज़ीद ईंटें लगा रही हैं जो आज तक हमारे पाकिस्तान के अंदर लगाई गई हैं। एंड लेट मी रिकॉल, बेगम राना लियाकत अली खान एजुकेशन के अंदर बहुत मेहनत करती थी, मेरी वालदा उनके साथ मेहनत करती थी। एक फजलुर रहमान साहब थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उनका ताल्लुक़ ढाका से था। उनकी बीवी मिसेस फजलुर रहमान और मेरी वालदा तालीम के लिए और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए मेहनत करती थी। और मैंने सुना है फजलुर रहमान साहब का जो बेटा है वो ढाका से पार्लियामेंटेरियन है, और वो भी इस बात को इंशाअल्लाह जारी रखेगा। बट ये लीडरशिप जो आपसे निकलती है
यही चीज़ लोगों को दिखाना है। ये आइकॉन्स जिन्होंने तकरीरें की हैं यहाँ पर, ये आइकॉन्स हमें लोगों को दिखाने हैं कि ये औरत जब हर मुकाम तक पहुँच सकती है तो लिहाजा माशरे की उन दीवारों को तोड़ा जाए। वोटिंग के अंदर बड़ी अहम बात की मिस कमीन आरा ने, वोटिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर हों। ये हमने कानून के ज़रिए औरतों की रिप्रेजेंटेशन रीज़नेबल की हुई है, मगर ये कि वोटिंग के अंदर वो गैप है कि जब आपकी एंटिटी नहीं होगी तो आप डिस्क्रिमिनेट होंगे, क्योंकि है ही नहीं, आपका आईडी कार्ड नहीं है तो लिहाजा आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप आउट है। एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप आउट बड़ा अहम है कि औरत जब प्रेग्नेंट होती है और बच्चे पैदा करती है तो फिर वो अपने जॉब पे नहीं जा सकती। लिहाजा दुनिया इस स्ट्रगल से गुजर रही है कि औरत जब प्रेग्नेंट हो और बच्चे पैदा करे तो फिर उसको जॉब्स के अंदर छूट मिले, छुट्टी मिले, उसके हस्बैंड को मिले और वापस उसकी एंट्री को इंश्योर किया जाए। आपको ताज्जुब होगा बहनों और भाइयों कि पाकिस्तान के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ एक शोबे की, सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए औरतें 70 to 80% आजकल की क्लास के अंदर औरत है। एंट्री में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएट करती है, 70 to 80% औरतें ग्रेजुएट करती हैं। अच्छा, मगर मेन स्ट्रीम में माशाल्लाह, मगर मेन स्ट्रीम में अब आप जाकर अगर डॉक्टरों को देखें तो औरतें कम हो गई, स्पेशलिस्ट को देखें तो और कम हो गई, 5% रह जाएंगी स्पेशलाइजेशन में, 95% मर्द करेंगे। तो लिहाजा हमें अपने माशरे के सिस्टम्स को ऐसा करना चाहिए कि वो अगर जाएं तो उनको वापस लाया जा सके। उनको ज़रूरी नहीं है कि औरत फुल टाइम जॉब्स करे, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स को हमें चेंज करना पड़ेगा कि पार्ट टाइम जॉब्स जो औरतें करती हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए तैयार करें। फुल टाइम कमिटमेंट शायद मुश्किल हो, बट हाउ कैन यू आइसोलेट योर पॉपुलेशन? 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आइसोलेट कर दें आप, तो मेरा ख्याल ये है कि उसके ऊपर भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, करें क्या? मिसाल दे रहा हूं मैं आपको कि अब इसके रास्ते क्या हैं। एक तो हमने और आपने बात की और हम हर फोरम पर कोशिश कर रहे हैं कि औरत को राइट्स मिले, हरासमेंट ना हो, पब्लिक स्पेसेस उसके लिए खुली हों, वो सेफ महसूस करे जाते हुए। एंटी रेप बिल, अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए उसके लिए सख्त सज़ा दी जाए ताकि औरत माशरे के अंदर वो ताकत महसूस करे और वो हिफाजत महसूस करे जो एक इस्लामी माशरे के अंदर हो सकता है। डॉक्टर मज़ारी, आपने बिल्कुल सही चीज़ लेकर चली। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया के अंदर रेट्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव लॉज बन रहे हैं, ताज्जुब की बात नहीं है। यूरोप ने कितनी कोशिश की है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यहूदियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, मगर उन्होंने कोशिश करके उस डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम किया। ये इस्लामोफोबिया अब उसके अंदर रेट्रोग्रेसिव अंदाज से वहाँ बात चल रही है, जो अफसोसनाक है। यानी बिल्कुल सही आपने मिसाल दी कि एक नन जा सकती है हिजाब करके, मगर मुसलमान औरत नहीं जा सकती। तो इनसे अवेयर रहना चाहिए। पिछली मरतबा मैंने गुफ्तगू की थी, उसके ऊपर कहीं कुछ ज़्यादा रिएक्शन हुआ, मगर अवेयर अगर हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो भी रुकेगा कैसे। और एक चीज़ आप हिंदुस्तान के बारे में भूल गई कि वहाँ शादी का बिल आ गया है। ये औरत के हुकूक पर ज़र्ब नहीं है, बहुत बड़ी ज़र्ब है। ये ह्यूमन राइट्स की बात यूरोपियन यूनियन को समझ नहीं आई। मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ा, कोई 2-3 पेजेस के 40 या 48 पॉइंट्स थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर। उसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र आया, हिंदुस्तान के अंदर जहां कानून बदले जा रहे हैं हिंदुस्तान का जिक्र नहीं आया। यह है हिपोक्रेसी। यह है कि जो अगर कहीं कोई मुल्क मजबूत है इकोनॉमिकली तो उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी बात छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है। जब आप बातें दबाएंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि वहाँ पर औरतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम बढ़ रहे हैं, औरतों के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स, मज़हब के एतबार से मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम बढ़ रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स के जो यूरोपियन यूनियन ने जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर बहुत बड़ी कसर है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। अच्छा, अब सबसे बड़े पहिए हमारे क्या हैं? एक तो मीडिया है। देखो, जो माशरे की सोच को बदलना है। मैंने पिछले दिनों यहाँ सोशल मीडिया और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक मीटिंग बुलाई और मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि वो माशरे को बदलना आसान काम नहीं है। ये जो कल्चरल स्ट्रक्चर्स हैं इनका मुकाबला सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लिहाजा मीडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर औरत के ऊपर वायलेंस नहीं दिखाया जाए,
औरत के वायलेंस का प्रचार कम किया जाए, इसको नॉर्म नहीं समझा जाए, इसको बीमारी समझा जाए और बीमारी के एतबार से रखा जाए। लिहाजा ड्रामों के अंदर औरत की इज्जत करना क्यों ना, यानी आप ये कहें कि आर्टिफिशियल बात है, नहीं है। औरत की इज्जत करना जो एक इस्लामी माशरे का शार हो सकता है, वो औरत की इज्जत करना दिखाई जाए। माशरे को तब्दील करने के लिए ये नहीं होता कि आप एक बैलेंस एटीट्यूड, जुल्म और सितम सारा दिखाएं, है तो औलाद भी वही सीखती हुई बढ़ेगी। तो लिहाजा एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की ज़रूरत है। और मैं हसीना मोइन साहिबा की तारीफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने एक ड्रामा लिखा है ब्रेस्ट कैंसर जिसके अंदर मेंशन हुआ। तो लिहाजा ड्रामों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो माशरे की रेस्ट्रिक्शंस हैं, देखो इस्लाम इस मामले में बड़ा क्लियर था। ये जो माशरे ने उसका कलर देकर हमारा कल्चर ख़राब हुआ है, उसको हमने ठीक करना है। और दूसरी बात, इस पहिए का सबसे अहम पहलू ये है कि उलमा के साथ बेइंतहा कोऑपरेशन है। यानी जो कुरान की हिदायत हैं उस पर उलमा तो बहुत आगे हमारे साथ जाने को तैयार हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर कुरान के हवाले से और कानून के हवाले से, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को मैंने कहा तर्जुमा हमने अपने कवानीन का भी कर लिया। और सूरह निसा के साथ हर मस्जिद में वी प्लान टू पुट अप अ पोस्टर ऑन दिस, फॉर एग्जाम्पल ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ऑन मैल न्यूट्रिशन। यानी ये जो हमारा बहुत बड़ी ताकत है कि हर महल्ले के अंदर मस्जिद है, उस मस्जिद को हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि औरत का वो मुकाम जिसके अंदर उसकी सेफ्टी हो, उसकी एम्प्लॉयमेंट हो। हमारे मज़हब के एतबार से कल्चर और ट्रेडिशन अगर इसके ख़िलाफ़ बात करे तो आपको उसको काबू करना पड़ेगा। तो ये एक तब्दीली करनी है पाकिस्तान के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि अपनी बात को मैं इख्तिताम तक पहुँचाऊँगा। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस बात के लिए कोशा हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात की थी कि औरतों के बग़ैर, उन्होंने कहा कि एक तो कलम है और एक तलवार है, मगर एक तीसरी ताकत है और वो है औरत। अगर औरत को आप माशरे में पूरा मुकाम नहीं देंगे तो मिस कमीनारा ने भी यह बात कही कि जीडीपी पर भी असर पड़ता है। तो हमारी एक तो ज़रूरत है मईशत के एतबार से कि हम इन सब को करें। डिसेबल्ड जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको भी करें, वो 10-15% होंगे माशरे के, औरत को भी करें। तो लिहाजा एक वो माशरा और एक वो पाकिस्तान जिसके ऊपर मुझे और आपको उम्मीदें हैं, वो पाकिस्तान बनेगा जिसमें हर पिसे हुए तबके, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, जो भी कमज़ोर हो। पाकिस्तान और इस्लाम और रियासत मदीना वो बात करती है कि कमज़ोरों को उठाकर, एहसास प्रोग्राम में कोविड में आपने साबित किया कि कमज़ोरों को उठाकर जब एक मजबूत पाकिस्तान बनेगा, वो पाकिस्तान सबके हुकूक की हिफाजत करेगा और दुनिया के लिए मशअल राह बनेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने जितनी बातें सुनी, जो कोशिशें कर रहे हैं, उनकी रफ्तार आप बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह चंद सालों के अंदर ये तब्दीलियां आ सकती हैं। इसके अंदर डिकेड्स नहीं लगने चाहिए। एक विलफुल माशरा जो है उसके बस में है कि ये तब्दीलियाँ लेकर आए, और वो माशरा मैं आज पाकिस्तान में देखता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।